Hello, curious people of class 9th. Welcome again to a new video of class 9th Geography, second chapter Physical Feature of India. This is part 6 and for 5 parts of this video has been uploaded. Once you watch that 5 parts, then start watching this one. Otherwise, you will never understand anything. Let's get started. As you have seen that in the previous videos we have discussed about this all the things, and we are doing the major physiographic division of the country of our India. So Himalayan mountain already we have completed, northern plain already we have completed, the great Indian desert already we have completed. Today we are going to do the peninsular plateaus. What we are going to do? The peninsular plateau. So let's get started. So anyway, this is what the India map. You can see this is what Himalaya, and these are the three rivers. This is what Indus River, and this is what Ganga and Yamuna. Ganga and Yamuna, they both meet at what Allahabad, and then this is the river which is what known as Brahmaputra, but from here to here this is known as Sangpo, and from here it is known as river Brahmaputra, and both enter into the Bangladesh, both join together Ganga and Brahmaputra and fall into the Bay of Bengal. Right, this is what the rivers from the Himalaya, and this is third desert, and this is which we have learned. This is the Indo-Gangetic plain, yeah, northern plain, which we have already learned. Then today the part which we are going to discuss, that is what Deccan plateaus, yeah, we can say peninsular plateau. Peninsular in the sense, what is the meaning of exactly, what is the meaning of peninsula? Peninsular in the sense, a piece of land which covered it three sides by the water and one side by the land. That type of land is called peninsula. That type of land is called peninsula. So Indian land, you can see from here to here, this is what covered by water. This side we says Bay of Bengal, and this side Arabian Sea, and this is water Indian Ocean. And this side, northern part of this area, we can find this is completely landmass. That is why this is what known as peninsula. This is known as peninsula. Then what is the meaning of plateaus? Plateaus in the sense, a piece of land, which exactly looks like a table, exactly looks like what a table, and this upper part of that land is what, upper part of this land is what, somewhat plain. This type of land mass is what known as plateaus. This type of land mass is known as plateaus. And here you can see this is slope. As you can see, this area is height area. That is why water is not coming upon it. Getting my point? That is why water is not coming upon it. So here you can see some hilly areas are found here. Some hilly areas are there. Hilly areas in the sense, these are the mountain range. These are what? Mountain ranges. What the mountain ranges? This is here the area, as I told you, like this plain. This is plateaus, and it is covered by some of the hills. It is rounded by the hills. What are the name of these hills? We will come to know in the just after few minutes. Right. So let's start again. Watch, here you can see the same thing which I told you. This is the area, and this is the mountain range which has been shown in that map in same area, and here also some mountain ranges you can find. Satpura range, Vindhya range, right? These are we can find it is found here also. This area is known as what? Peninsular plateau. That means this is plateaus, and the total whole area is known as peninsula. So the peninsular plateau is a tableland which contain igneous and metamorphic rock. That means this peninsular plateau completely contains of water,
igneous and metamorphic rock. It is composed of the oldest rock because it was formed from the drifted part of the Gondwana land. Already in the part 2 we have discussed what is the Gondwana land and which part is known as drifted part. That means exactly continental shelf part is known as drifted part. So we have already learned this, and this is the composed oldest rock because was formed the drifted part of the Gondwana land. Drifted part in the sense you can see this part has a collision with the Eurasia land, right? And this is what Gondwana land. Both have what coalesced. This results what Himalayan mountains. So this part was drifted part. Broad and shallow valley and rounded hills are the characteristic features of the plateaus. As I told you, these are the what rounded valleys, yeah, mountains, right? In between we find what plateaus. The plateau can be broadly divided into two regions. One is Central Highland and another one Deccan Plateaus. Central Highland is this is the part which is known as Central Highland. This is the part which is known as Central Highland, and this is what Deccan Plateaus. This is what the Deccan Plateaus. Getting, I hope you people are watching my pointer also where I am locating this all the things. So this is Central Highland and Deccan Plateaus. This is Central Highland and this is Deccan Plateaus. One of the important feature of the peninsular plateaus is black soil area, which is known as Deccan Plateau. This area is completely which type of soil we find? Here we find black soils. Black soils due to the volcanic eruptions. वोल्कानिक इरप्शन होने के कारण यहाँ पे हमको ब्लैक सॉइल मिलेगा. जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा. This black soil originated from the volcanic eruptions, thus it has igneous rock. Igneous rock मतलब जलने के बाद जो लावा निकलती है, लावा निकलने के बाद जब वो बहुत साल बाद ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो जो रॉक में कन्वर्ट होती है उसको हम igneous rock बोलते हैं. और वो igneous rock वेदरिंग प्रोसेस के चलते फिर टुकड़ा टुकड़ा होके मिट्टी में कन्वर्ट होती है. वो मिट्टी जलने के कारण ब्लैक कलर की होती है, इसीलिए हमको यहाँ पे ब्लैक कलर की सॉइल मिलता है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं. चलिए लेट अस डिस्कस इट. तो सेंट्रल हाईलैंड क्या है एक बार देख लो. सेंट्रल हाईलैंड मैंने जैसे आपको बताया ये वाला पार्ट आपका आएगा सेंट्रल हाईलैंड में. ये क्या है? द सेंट्रल हाईलैंड लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर. यहाँ पे नर्मदा रिवर गई है. ये नर्मदा रिवर के यहाँ से ओरिजिनेट होके नर्मदा रिवर गई है कि नहीं गई है? नर्मदा रिवर के अपर पार्ट से हमको मिलेगा, नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगा. इट कवर्स द मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेटस. यहाँ पे आपको दिख रहा है मालवा प्लेटस लिखा हुआ है. ये एरिया मालवा प्लेटस. लोकेशन नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर. विंध्या रेंज इन द साउथ. विंध्या रेंज यू कैन फाइंड, दिस इज विंध्या रेंज. विंध्या रेंज इन द साउथ. उसके बाद क्या? अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट. अरावली माउंटेन हमको यहाँ मिल जाएगा. उसके बाद इट कवर्स मालवा प्लेटस, बुंदेलखंड, भागलखंड, छोटानागपुर. मतलब यहाँ पे आपको मालवा प्लेटस मिल जाएगा, फिर बुंदेलखंड, भागलखंड एंड छोटानागपुर प्लेटस. ये सब सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट हैं. चार पार्ट में डिवाइड है. मालवा प्लेटस, बुंदेलखंड, भागलखंड एंड छोटानागपुर प्लेटस. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये हैं वन बाय वन. द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. साउथ वेस्ट कौन सा है बेटा? साउथ वेस्ट मतलब ये हो गया हमारा साउथ डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट. मतलब यहाँ जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं ये रिवर्स ऐसे मूव करते हैं. ये देख रहे हो ना रिवर्स, जो रिवर्स की पॉइंटिंग यहाँ दी गई है, ये सब रिवर्स ऐसे फ्लो करते हैं. बात समझ गए ना? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट ऐसे, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट. कहाँ? जैसे साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट मूव करती है. और ज्वाइन करते किसको? वो गंगा रिवर को ज्वाइन किए हैं. ये सब क्या है? गंगा के ट्रिब्यूटरीज है. गंगा के क्या है? ट्रिब्यूटरीज है. डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं है, ट्रिब्यूटरीज है. यमुना भी गंगा की क्या है? ट्रिब्यूटरीज है. तो ये रिवर क्या है? चंबल, सिंध, बेटवा, कैन, सन एटसेट्रा, which indicates the slope of the region. अब स्लोप तो आपको समझ में आ ही गया होगा. स्लोप कहाँ है? यहाँ है. इस तरफ स्लोप है इसकी.
अब ये क्यों है, इसमें भी हमारा जब फॉर्मेशन हुआ था इंडिया, उसका एक कारण है। अब थोड़ा समझना, नहीं आया तो मुझे जरूर पूछना। राइट, इट इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट। अभी यहाँ पे जो हमको दिख रहा है ना वेस्ट में, ये वेस्ट में क्या है, वाइडर है, और धीरे धीरे ये नैरो होते गया है। बात समझ लो। उसके बाद बुंदेलखंड भागलखंड मार्क द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटर्स। मैंने जैसे आपको बताया, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में हमको देखने को मिलता है। दिस प्लेटर्स फर्दर एक्सटेंडेड ईस्टवर्ड इनटू द छोटानागपुर प्लेटर्स। ये यहाँ पे हमको मिल जाएगा बुंदेलखंड भागलखंड एंड देन छोटानागपुर प्लेटर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। राइट, इसके बाद आता है डेक्कन प्लेटर्स, जो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। बात समझ लो। द डेक्कन प्लेटर्स लाइज इन द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में है क्या, डेक्कन प्लेटर्स। इट इज ट्राइंगुलर इन शेप, एज यू नो दैट, ऐसा है, उल्टा ट्राइंगल जो हम बोलते हैं ऐसा। राइट, ट्राइंगुलर इन शेप। द स्लोप ऑफ द डेक्कन प्लेटो इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका स्लोप कैसा है बेटा, ऐसा ही, वेस्ट टू ईस्ट है। इसका स्लोप कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। समझ में आ रही है ना। लोकेशन क्या है, द सतपुड़ा रेंज मेक्स इट्स नॉर्दर्न पार्ट। सतपुड़ा रेंज जो है इसका नॉर्दर्न बाउंड्री आता है, इसके बाद से आता है। उसके बाद क्या है, महादेव एंड कैमूर हिल्स मैकाल रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट। यहाँ पे महादेव कैमूर सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। राइट, ये ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। उसके बाद इट एक्सटेंडेड इनटू द नॉर्थ ईस्ट विच एनकॉम्पास मेघालय, कर्बी, अंगोल प्लेटर्स, अंगलोंग प्लेटर्स। ये आपको यहाँ तक दिख जाएगी। बात समझ रहे हो, एंगलोंग प्लेटर्स एंड नॉर्थ चाचर हिल्स, यहाँ आपको दिख जाएगा चाचर हिल्स। गारो, काशी, जयंतिया हिल्स आर द प्रोमिनेंट रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। राइट, उसके बाद यहाँ मिलते हैं पूरे गारो आपका आ गया, जैसे काशी, जयंतिया, ये सब। राइट, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। मतलब क्या है, ये पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये जो माउंटेन बोले ना कि इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, और इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। बात समझ रहे हो, इसको ईस्टर्न घाट्स एंड इसको वेस्टर्न घाट्स। अभी वेस्टर्न घाट्स क्या है, वेस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फॉर द फ्रॉम द ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर से, ये ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर से, ताप्ती रिवर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक, यहाँ है कन्याकुमारी। ताप्ती रिवर से पूरा कन्याकुमारी तक वेस्टर्न घाट से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। बात समझ रहे हो। एंड द ईस्टर्न घाट कहाँ से है, महानदी वैली, मतलब ये महानदी वैली, यहाँ पे महानदी रिवर देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर कहाँ तक है, महानदी वैली से लेकर नीलगिरी हिल्स इन साउथ। यहाँ पे आपको नीलगिरी हिल्स मिलेगा, जहाँ पे ऊटी, ऊटी है। ऊटी का दूसरा नाम क्या है, उडगमंडलम। ऊटी का दूसरा नाम क्या है, उडगम मंडलम। और आपको ऊटी जो बोलते हैं वो नीलगिरी हिल्स में है। राइट, वो हाईएस्ट है साउदर्न पार्ट का। वेस्टर्न घाट एवरेज विड्थ इज 50 टू 80 किलोमीटर। इसका विड्थ कितना है, ये 50 टू 80 किलोमीटर, समझ रहे हो। बट ईस्टर्न घाट्स विड्थ इज वेरिंग 100 टू 200 किलोमीटर। इसका कितना है, 100 टू 200 किलोमीटर है। उसके बाद वेस्टर्न घाट इज सोर्स ऑफ मेनी लार्ज रिवर्स बट नॉट बिग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। आप समझो, जो जितने भी रिवर्स हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, गोदावरी, कृष्णा, राइट, ये सब रिवर्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके बे ऑफ बंगाल में पड़े हैं। और ईस्टर्न घाट ऐसा कोई सोर्स है ही नहीं। कैसे होगा भाई, क्योंकि ये जो हमारा डेक्कन प्लेटर्स है ये तो वेस्ट टू ईस्ट फॉल है। बस समझ लो ना ऐसे। वेस्टर्न घाट आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू द पासेस ओनली। अभी आपको यहाँ से गोवा जाना है तो ये दोनों माउंटेन के बीच से रास्ता निकाल के जाना है। केरला जाना है, ये यहाँ पे आपको जाना है समंदर में, तो इसको क्रॉस करके ही जाना है। दोनों पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकाल के जाना है। बट ईस्टर्न घाट हैज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स बाय लार्ज रिवर्स। अभी आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ना पार्ट्स, ये एक है, यहाँ से आपका गोदावरी रिवर घुसा, यहाँ कृष्णा रिवर घुसा, यहाँ महानदी रिवर का जो स्ट्रीम है वहां से घुस रहा है। तो ये ऑटोमेटिक डिवाइड हो गया है, क्योंकि बहुत साल से पानी जा जाके ये डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पासेस हैं ऑलरेडी। वेस्टर्न घाट का जो एवरेज एलिवेशन है वो कितना है, 900 से 1600 मीटर है। कितना है, 900 से 1600 मीटर। बट एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट कितना है, 600 से 1100 मीटर है। 600 से 1100 मीटर है, आप ये थोड़ा लिख लेना, 600 से 1100 मीटर है। हाईएस्ट पिक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज अन्नाई मुडी। अन्नाई मुडी का हाईएस्ट पिक क्या है, अन्नाई मुडी है वेस्टर्न घाट्स का।
और ईस्टर्न घाट्स का क्या है, महेंद्रगिरी आपका यहाँ आता है। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, इसका हाइट दिया गया है। मगर एक चीज समझना है, जो यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स में हाईएस्ट पिक होता है दोदा बेटा। क्या है, दोदा बेटा। दोदा बेटा है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, आप समझ लो। हाईएस्ट है वेस्टर्न घाट्स के, सिर्फ वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे, और ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी है। और टोटल जो हमारा साउदर्न इंडिया है उसमें हमारा जो हाईएस्ट पिक है वो है अनाईमुड़ी, वो नीलगिरी हिल्स में है। आप समझ गए। वेस्टर्न घाट्स रिसीव्स ऑरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे रेनफॉल मतलब जबरदस्त होता है, ऑरोग्राफ में कंटिन्यूअस। साउथ वेस्ट मानसून कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी एंड कॉजेस हेवी रेनफॉल। यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है, क्यों, वो मानसून जो आती है साउथ वेस्ट की वजह से। Eastern Ghat is the most parallel to the monsoon coming from the Bay of Bengal and does not cause much rainfall. यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, और यहाँ होता है। ये क्यों होता है, आपके चैप्टर 4 क्लाइमेट पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप ये क्वेश्चन को नोट करके रखना और मुझे पूछना कि यहाँ ज्यादा बारिश होती है क्यों, और यहाँ क्यों कम होती है, राइट। इसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोग सभी वीडियोस को अच्छे से देखा कीजिए, जो भी डाउट्स है पूछा कीजिए, बिना डाउट्स क्लियर किए आगे बढ़िए मत। ये मेरा क्या है, सजेशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।